Jai Hind students. Now the previous chapter we have finished, and now we are going to start the new chapter of your second book. This new chapter is the social change and development in rural society. We are going to study and share our study today and started this chapter. Understand? The other chapters has been finished previously, and this chapter we shall take on our study. First of all, we know that here we are talking about the rural society. It means that the countryside society means the village society. We are going to study about that. And the Indian, we know very well that India is primarily a rural society, and although urbanization is very fastly happening and in progress in our country, but despite that, a large number of the people are still live in the village side or the countryside, and the majority of India's people we know very well we now live in the rural area, or even today 67, or I suppose that uh, more than almost the 65, almost of 67 range people live in the villages, or those people are dependent on the agricultural occupation and agricultural work, and more now related to the occupations. Two types of the people are there. One, most of the peoples are uh, dependent on villages, and and some of them are dependent or associated with the occupation. Those occupations are associated with the agricultural works. In those they are the engaged, or this is the figure according to the census of 2001. 2001, according to their census, accordingly, the 67% of our population live in the still reside and reside or dwell in the agricultural sectors. They are there, and now living the agriculture and agriculture related. I have already mentioned. और land is the most important productive resources. Land क्या है? एक most important or central important productive resources. And now it is the kind of property the people have in the villages. Form of property है land, and the means of agriculture. इंटायर एग्रो जो इकोनॉमी है वो लैंड पर डिपेंड है कंप्लीटली। जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो उसका लैंड एक बेसिक, हम कहेंगे एक फंडामेंटल वो बेस है। तो लैंड अगर नहीं रहेगा तो देयर इज नो एग्रीकल्चर देयर। सो द लैंड, अब हम यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड्स की बात करते हैं, तो दिस लैंड इज नॉट ओनली द ओनली द मीन्स और ओनली द पार्ट प्रॉपर्टी, only the asset and property and other thing. This is the, this land is much more than that. Ye lands much more than that. And now what is that? It is a form of, nor is the agriculture just form of livelihood. ये केवल livelihood का एक सहारा नहीं है, एक फॉर्म नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है only. This is not much. This is the also a way of life. लैंड मीन्स, मेरे कहने का मतलब कि हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि नाउ ज्योग्राफी ज्योग्राफी नाउ डिसाइड्स एंड द गिव द बर्थ ऑफ द कल्चर। तो लैंड एक ज्योग्राफिकल एसेट है, एक ज्योग्राफिकल प्रॉपर्टी है, अंडरस्टैंड। और इंटायर कल्चर डेवलप्स अराउंड द लैंड।
We know very well कि cultures all over the world develops according to the topography of that हिली एरिया हमारे कल्चर से क्वाइट डिफरेंट है क्यों बिकॉज द द कल्चर डेवलप अकॉर्डिंग टू द uneven hills and its topography. Accordingly, their dress, their food habits, their way of living, their culture, all aspects fixed and the develop around that topographical. Similarly, Central Asians attacked Bharat. Central Asians. So why they got the success overcome this? Because of their topography, because of their land structure, their field, they were hard working. And here in our country, the agriculture, fertile lands, alluvial lands, a huge productions happened. People were the people became the peoples now became well, and dependent on the luxurious. They became luxurious. Laxity came, and on the other hand, the Muslims invaders they were very much uh, hardworking and they were determined to win this fertile lands of India, where they wanted to rule and lead their luxuries. So now I have to take the land is the way of life. मीन्स इंटायर हमारा जो कल्चर है हमारी संस्कृति है वो लैंड से ही जन्म लेती है born by the land and moreover many our cultural practices आप देखेंगे ऑब्जर्व करिए और पैटर्न्स कैन बी ट्रेस्ड टू आवर एग्रीगेरियन बैकग्राउंड हमारे बहुत से जो कल्चर्स या हमारी प्रैक्टिसेस हम जो सेलिब्रेट्स करते हैं फंक्शंस करते हैं तो वो कहाँ से एसोसिएटेड है वो लैंड से एसोसिएटेड दैट इज द एंड बिकॉज ये एग्रीरियन बैकग्राउंड है उसका अब दिस इज फॉर एग्जाम्पल्स आप देखिए इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर एंड कल्चर जैसे एग्जाम मोस्ट ऑफ द न्यू ईयर फेस्टिवल अगर हमारे यहाँ मनाया जाता है अपने हैप्पी फर्स्ट फर्स्ट जनवरी नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर द फर्स्ट जनवरी दिस इज नॉट आवर्स रिमेंबर दिस इज नॉट आवर्स दिस इज फ्रॉम द यूरोप उस कल्चर की हमने अडॉप्ट कर लिया है हैप्पी बर्थ हैप्पी सॉरी हैप्पी न्यू ईयर्स हम कहते हैं लेकिन दिस इज नॉट आवर्स कल्चर से हैज इट्स ए न्यू ईयर बिगिनिंग एंड द सेलिब्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए पोंगल इन तमिलनाडु में it is the beginning of the new year this is the beginning of the this is the beginning of a new agricultural season पोंगल मनाए सेलिब्रेट करते हैं बिहू असम में हम बिहू सेलिब्रेट किया जाता है आप जानते हैं कि बैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है और उगादी इन द कर्नाटका नेम्स तो दिस सेलिब्रेशन ने न्यू ईयर्स फेस्टिवल्स के ओकेजन्स पर न्यू सीजन्स के अपने ओकेजन पर ये सेलिब्रेट किया जाता है तो नाउ these all celebrations are associated with the production of land now produces the new and gives the new corns provides that way that is why these are the celebrated moreover और हम ये देखते हैं कि क्लोज एग्रीकल्चर और कल्चर में एक बहुत क्लोज रिलेशन है क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा जो कल्चर है हमारी जो सेलिब्रेशन है फेस्टिवल्स हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी आप जाइए इधर ब्रॉज टू द लेक ताम्रलिप्त तक आप आइए तो जितने भी सेलिब्रेशंस आप देखेंगे रूरल एरिया सेलिब्रेशंस जो भी हो रहे हैं दैट इज द एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर सो द एग्रीकल्चर आवर कल्चर नाउ ये comes of the agriculture and now the nature and practice of agriculture varies greatly across the different region और जानते हैं एग्रीकल्चर के भी हमारे यहाँ जो टोपोग्राफिकल जो जोग्राफिकल सेटअप है वो डिफरेंट आप देखते हैं गंगेटिक प्लेन है प्लेटू है कहीं हिलीस एरिया है कहीं सॉइल्स डिफरेंट है डिफरेंट
जोन्स में डिफरेंट कल्चर, डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स टोपोग्राफी भारत में। तो इसलिए ये डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, और उसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कल्चर्स डेवलप हुआ। और we see these variations reflected in the different regions culture, और ये क्या कल्चरल वेरिएशंस है। फॉर एग्जांपल आप देखिए तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इधर आप केरला लीजिए, अंडरस्टैंड, इधर कर्नाटका आ जाइए, महाराष्ट्र आ जाइए, उसके ऊपर आप इधर गुजरात आ जाइए, राजस्थान आए, और इधर आप उड़ीसा जाइए, झारखंड जाइए, वेस्ट बंगाल आप जाइए, अंडरस्टैंड, इधर बिहार आइए, ओके, इधर उत्तर प्रदेश आइए, उधर उत्तराखंड जाइए, इधर हिमाचल जाइए, सेवन सिस्टर्स के स्टेट में जाइए। तो ये बिल्कुल ही टोपोग्राफिकल से एक डिफरेंसेस है। और ये टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस क्या है कि ये इसीलिए फॉर दैट कि हर जगह की कल्चर, वहाँ की सेलिब्रेशन और लोकल जो ट्रेडिशन है क्वाइट डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट है। तो आप जानते हैं इंडिया इज अ वेरी, और हर जो कल्चर है, एक एक नेशनल कल्चर, बहुत ही कम ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो एक नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। हाँ बहुत सॉरी सेलिब्रेशन है वो स्टेट वाइज, स्टेट्स के वहाँ की लोकल, वहाँ की जो एग्रीकल्चर है या वहाँ के उसके अराउंड जो उनका डेवलप हुआ है एक लोकल रीजनल कल्चर, वो दैट इज द डिफरेंट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द लैंड और इन द कंट्री। कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर भी अलग अलग डेवलप्ड है। सोशल स्ट्रक्चर आप देखिएगा, सोशल नॉर्म्स में, स्ट्रक्चर्स में, तो वो दैट इज द डिफरेंट, सम आर द डिफरेंट। बंगाल का सोशल स्ट्रक्चर आप देखिए, महाराष्ट्र का, वहाँ की कल्चर देखिए, हर जगह एवरी स्टेट्स वी हैव द क्वाइट डिफरेंट, और सबकी एग्रेरियन एंड क्लोजली इंडिया जो एग्रेरियन, जो उनका दे आर द बाउंडेड अप टू लिव एग्रेरियन वे ऑफ द लाइफ उनका है, एग्रेरियन, और वो एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ वहाँ की जो बेसिक लैंड है और उससे अराउंड या टोपोग्राफी है, रिवर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ की जो जोग्राफिकल सेटअप्स है अकॉर्डिंग टू दैट डेवलप। और हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, मोस्ट लाइवलीहुड का अगर कोई भी भारत में एनी सोर्सेस है तो वो एग्रीकल्चर मोस्ट important source of, or majority of rural populations now dependent on that, we know very well। And the just agriculture, many activities supports the agriculture, ये तो एग्रीकल्चर की मेन एक्टिविटीज हुआ। इसके सपोर्टिंग्स में स्मॉल स्केल जो एक्टिविटीज हैं, जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जिसे कहते हैं, दैट इज आल्सो गो साइड बाय साइड टू द एग्रीकल्चर एंड मीनिंग एंड सपोर्ट द विलेज लाइफ, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। एंड फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लार्ज नंबर ऑफ आर्टिजन्स रहते हैं, गांव में आप जाएंगे आपको पॉटर्स मिलेंगे, कारपेंटर्स हैं, कारपेंटर, वीवर्स, आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, and they are the found in rural area weavers, and they now where they were once part of the parcel of the village, और ये जो थे पहले ये विलेज इकोनॉमी के एक बहुत ही क्लोज पार्ट एंड पार्सल एलिमेंट्स थे। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने का विलेज इकोनॉमी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये सपोर्टर्स थे इकोनॉमी के लिए। जैसे आज क्या है, आज हम लार्ज स्केल पर देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर और और सेकेंडरी सेक्टर, इसके बाद हम टर्शियरी सेक्टर्स में करते हैं। तो उस वक्त जो प्राइमरी सेक्टर्स के जो सपोर्टर्स थे ये स्मॉल स्केल वो मैन्युफैक्चरिंग थी, स्मॉल स्केल्स नहीं कि वेरी लोकल, वेरी स्मॉल स्केल्स जो पेट्रोल से करना, आउट जो आज हम आउटडेटेड कहते हैं, दैट वाज द सपोर्टिंग फॉर द एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन सपोर्टिंग था। आज एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट्स के लिए लार्ज स्केल्स पे चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और इसके आगे सर्विस सेक्टर सपोर्ट करता है। तो इवन द इंटरनेट और जो कंप्यूटर है, ये सब क्या है, एक एग्रीकल्चर को भी ये सपोर्ट्स कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारे ऑफिस को ही सपोर्ट करते हैं, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन ये हमारे एग्रीकल्चर्स को भी सपोर्ट करते हैं। तो
उस वक्त तो ये सब these things were not at all। तो सो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लोकल लेवल पर ये सपोर्टिव से एलिमेंट्स थे एग्रीकल्चर्स के लिए एंड स्टेटली लिसनिंग सिंस द कॉलोनियल पीरियड। लेकिन जब ब्रिटिश आए भारत में विद द एडवेंट ऑफ द लिस्ट, तो ये एलिमेंट्स जो एग्रीकल्चर सपोर्टिव एलिमेंट्स थे, ये इनके जो नंबर्स हैं दैट बिगेन टू बी द रिड्यूस्ड, क्योंकि बिकॉज रिड्यूस्ड व्हाई वी हैव चैप्टर फर्स्ट में जैसे आप इन्फ्लक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स रिप्लेस द हैंडमेड प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रिटिश के आने के बाद तो मैन्युफैक्चर गुड्स ब्रिटेन से आने लगे, इंपोर्ट्स करने लगे। तो ये क्या हुआ, दिस नाउ ग्रेजुअली रिप्लेस द लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो हम लोकल की बात करते हैं, दैट लोकल हैज बीन कंप्लीटली लोकल वॉज हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज दैट वर द कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश एडमिट। क्योंकि ब्रिटिश क्या किया, लार्ज स्केल इन्फ्लक्स करना, और हमारे यहाँ सबसे जो मोस्ट फ्लोरिस्ट हमारे यहाँ ये था इंडस्ट्री था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वो टेक्सटाइल था, और उन्होंने सबसे ज़्यादा हिट किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि बैकबोन था इंडियन इकोनॉमी की, दैट वाज द बैकबोन फॉर द इंडियंस एंड, और इट वाज द मेन बेस ऑफ द प्रोस्पेरिटी, स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, दो ही हमारे ब्रिटिश के आने के पहले यही बैकबोन थे हमारी इकोनॉमी, और भारत की प्रोस्पेरिटी जो सोने की चिड़िया, इट वाज द फर्स्टली टारगेटेड बाय दिस एंड मोर ओवर रूरल लाइफ सपोर्टेड, कुछ स्पेशली स्क्रैप रूरल रूरल लाइफ में और भी कई साइड में सपोर्टिव जो सर्विस सेक्टर्स में आते हैं, जैसे कि स्टोरी टेलर्स हैं, मोर ओवर एस्ट्रोलॉजर्स, दे हैड द priest, water distributors and the oil piercers, these group and the class got the support from our rural economy में इनका भी प्लेस था, and their livelihood was going on very well in the, और occupations in rural India was reflected in the caste system। और ये occupation आपको हमने पढ़ाया, हम बहुत पढ़े हैं कि जो occupation था that reflected through the caste system, caste system and occupation was entangled together, और it was determined by the our social structure के थ्रू ये मिला था, caste system और जाति जो है, that was the, and which most regions included specialist and the service caste such washerman, service caste मिलता था, service by caste on the caste basis, washermen, potters, goldsmiths and some traditions occupations have declined। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ट्रेडिशनल ब्रिटिश के आने के बाद आफ्टर द एडवेंट ऑफ दैट, हमारा ट्रेडिशनल्स जो दैट इज द इट कंप्लीटली डिक्लाइंड है, और moreover increase the interconnections of rural and urban economies have led many diverse। और इसके साथ जब ब्रिटिश आया तो अर्बनाइजेशन भी थोड़ा फास्ट स्टार्ट हुआ भारत में, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अर्बनाइजेशन होने के बाद ये ऑक्यूपेशंस जो हमारे हैं धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे। वो जो ऑक्यूपेशंस करने वाले थे, नाउ मैन्युफैक्चर गुड्स आने लगे, डिफरेंट टाइप मार्केट्स में अवेलेबल होने लगे, तो उनकी जो अपनी हैंडमेड इकोनॉमी थी, जो कॉटेज इकोनॉमी थी, दैट डिसरप्टेड, और अर्बन इकोनॉमी लेड टू द मेनी डाइवर्स ऑक्यूपेशंस अर्बन इकोनॉमी आने के बाद, और मेनी पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर एम्प्लॉयड इन और नाउ लाइवलीहुड बेस्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज, और जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में थे दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग, देयर आर रूरल रेजिडेंस एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ नए सर्विस का इंट्रोडक्शन ब्रिटिश क्या किए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे पोस्टल सर्विस, तो बहुत से रूरल इकोनॉमी में या रूरल स्ट्रक्चर में कास्ट बेस्ड तो वर्कर्स थे, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस था,
वो तो बिल्कुल कास्ट बेस्ड था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश के आने के बाद कई तरह के ऑक्यूपेशन न्यू ऑक्यूपेशन इंट्रोड्यूस किए, जो कि गवर्नमेंटल अगर माना जाए, जैसे टीचर्स, स्कूल्स खुलने लगे, नए स्कूल्स, टीचर्स दे बिलोंग टू द विलेज। इसके बाद आप पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुआ, the postal postman belong to the villages, education department, factory workers के आने के बाद the villagers now begin to migrate towards the factories, वो जाना शुरू कर दिए। and the all this from village की जो population structure था, that and the occupational structure change होने लगा, और these villagers now begin to move in the different way। ये विलेजर्स कहीं और डिफरेंट वे, यानी कि some of them began to go to the towns, some of them began to take on the government service, some of them went in the towns and joined the work in the factories। तो ये तो हमारी विलेज की जो सोशल स्ट्रक्चर था दैट वाज, तो इसमें उसके जो एलिमेंट थे, जो पीपल्स थे, वो और भी ऑक्यूपेशन, मेरे ये कहने का मतलब आई हैव टू से है कि और ऑक्यूपेशंस, मल्टी ऑक्यूपेशनल ग्रुप से और बढ़े विलेज सोसाइटी, क्योंकि वो बिलोंग करते थे उस गांव से। तो और भी वर्किंग पीपल जो डिफरेंट वर्क्स में, तो वर्क बढ़ा, इंक्रीज हुआ। एंड नाउ अब हम लोग देखेंगे कि एग्रियन स्ट्रक्चर कास्ट एंड क्लास से इन द रूरल एरिया। तो एग्रीगेरियन जो हमारा स्ट्रक्चर है, एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर में देखिए, एग्रीकल्चर द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस था, मैंने बार पहले भी हम लोग डिस्कस किए, और द प्रॉपर्टी का फॉर्म था। नाउ इट वाज द नॉट इक्वली, अब हम एग्रीकल्चर या लैंड का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा विलेज में, तो इट वाज नॉट इक्वल। सम पीपल, सम जमींदार्स possessed the large tract of the land, they were owner of the large tract of the uh, lands, and the and some in the villages had were the middle agriculturists थे, जिनके पास a few acres से लैंड्स था। नेक्स्ट एक कैटेगरी था मार्जिनल लैंड ओनर्स, तो मार्जिनल में बहुत कम, लिटिल। और एक कैटेगरी ऐसा था कि लैंडलेस थे, विदाउट द लैंड, उनके पास लैंड थी ही नहीं, और दे वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द for their livelihood on agricultural process that was that used to be the go in seasonal way, seasonal manner in the village. So they were the, and village region, now everyone now access to the, हर आदमी के पास लैंड नहीं था, मैंने पहले भी कहा। some parts of India majority of rural households own at the at least some land, और मेजोरिटी ऑफ हाउस होल्ड था, कुछ लैंड्स के पोर्शन उनके पास रहते थे, एंड वेरी स्मॉल प्लॉट्स उनके पास होता था। 40 से लेकर 50% फैमिली डोंट ओन एनी लैंड, अगर डाटा देखा जाए तो 40 से लेकर 50% के पास लैंड नहीं था, दे आर कंप्लीट लैंडलेस। और इससे दे हैव द डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, दे नाउ लेबर एग्रीकल्चरल सेक्टर में, वो लेबर का काम एग्रीकल्चरल वर्क, तो इजीली they were available for the landowners in the villages for the work, easily they were, and moreover this was lively, this course of means few families were the very well to do, ऐसे 10-15% फैमिली थे, 20-25% जो कि वेल ऑफ थे, वेरी, और उनके पास एक्स्ट्रा सफिशियंट प्रोडक्शन होता, दे हैड। लेकिन इसमें देखा जाए कि कुछ जो मेंबर्स बहुत बहुत लार्ज स्केल जो फार्मर थे, 40 से 50 तो था ही नहीं, देयर लाइफ वाज वेरी मेजरेबल लाइफ एंड हार्ड प्रेसिंग लाइफ, हार्ड प्रेस्ड लाइफ था उनके साथ। एंड और एक एक्स्ट्रा जो जो लैंड ओनर्स थे, जो बिग लैंड्स थे, इनके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स था, एक्स्ट्रा इनकम था, और इन्वेस्टमेंट ये करते थे। तो दैट वाज द वेरी लीड द वेरी लग्जरियस लाइफ आल्सो। इन मोस्ट रीजन इंडिया देखा जाए तो वुमेन आर यूजुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड। अब यहाँ पे वुमेन्स, पहले भी हम लोग बात की कि वुमेन की लैंड शेयर में क्या था, तो आप जानते हैं कि ट्रेडिशनली वुमेन्स वर नॉट गिवन
द गिवन द शेयर इन द लैंड, ये हमारे धर्म शास्त्र ने भी लिखा था। और सिंस द विलेज social structure was the very traditional, so that's why the women's naturally they were deprived of the land's property and the other property. So there, because prevailing the patrilineal kingship system, इसमें क्या था? patrilineal kingship, patrilineal kingship में आप जानते हैं, already I have taught in the class, कि the women had no any right, the daughters had no uh, 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 right over the demised father's property, paternal property को उसका कोई rights। तो वुमेन्स कंडीशंस जो लैंड शेयर में है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल था, दैट वाज एंड बाय लॉ बिकॉज एंड द मोड ऑफ हेरिटेंस हमारा क्या था? पैट्रीलिनियल था, दैट्स व्हाई वुमेन वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द राइट्स एंड मोर ओवर बाय लॉ supposed to have the equal share of the family property or women's, in reality they were the लिमिटेड राइट्स। एक्चुअली बाई लॉ तो कहा जाता था कि उनका हिस्सा है या शेयर है, लेकिन प्रैक्टिस में देखा जाए तो इट वाज द नथिंग एंड द लिमिटेड राइट्स, सम एक्सेस टू द लैंड ओनली एज ए पार्ट ऑफ हाउस होल्ड हेडेड बाई ए मैन। और जो एक्सेस था जो कुछ भी तो मैन का, हेडेड बाई नॉट दैट, नॉमिनली था उनके लिए, कभी कभी मान लीजिए कि उनको मिला भी प्रॉपर्टी का कुछ भी तो उस पर मैन ही प्रैक्टिकली डोमिनेट करता। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर ऑफन यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स मीन्स द चंक्स ऑफ द लैंड, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए। बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सेस टू लैंड शेप्स द रूरल क्लास स्ट्रक्चर। और रूरल, अगर रूरल क्लास की हम स्ट्रक्चर देखें, इंडस्ट्री का तो अब देख लेते हैं, कैपिटलिस्ट है, वर्कर्स हैं, लेकिन रूरल क्लास जो लैंड प्रोडक्शन है उस इकोनॉमी में हम क्या देखेंगे? उसमें क्लास स्ट्रक्चर, एक्सेस टू लैंड लार्जली डिटरमिन्ड what role one plays in the process of agriculture production। वहाँ पे क्लास कैसे इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के प्रोसेस में किसका क्या रोल है? मीडियम लार्ज ओनर्स थे, मीडियम लैंड ओनर्स आर यूजुअली एबल टू अर्न सफिशिएंट। अब इसमें था कि जो लार्ज बिग लैंडलॉर्ड्स था और जो मिडिल लैंड ओनर्स था, तो दे हैड द सफिशिएंट और एक्स्ट्रा प्रोडक्शंस। प्रोडक्शन मीन्स दैट सफिशिएंस लेवल्स के से ज़्यादा, मच मोर, एंड दोज वेयर द डाइवर्टेड टू द मार्केट्स में, और दे गेन द मनी बाय सेलिंग दिस इन द मार्केट। तो उनके पास दे हैड द सफिशिएंट, लेकिन जो लैंडलेस थे दे आर द हैंड टू माउथ, every day they had to work and every day they had to gain only for only for the 2 squares meals, they could hardly manage। Now here this, if we cultivator and depends say prices fluctuate greatly, other factors such as the monsoon, लेकिन इनका भी इनकम फ्लक्चुएट होता था। जो लैंड होल्डर्स थे, बिग लैंड होल्डर्स या जो मिडिल लैंड होल्डर्स हैं, तो देयर इनकम सफिशिएंट का जो फ्लक्चुएशन था होता था कब? देखिए मानसून। आप जानते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज जस्ट एज द गैम्बलिंग विद द मानसून। मानसून अगर बेस्ट हुआ, अच्छा हुआ, दैट्स ओके। अगर मानसून नहीं हुआ, फेलवर्स ऑफ मानसून, तो देयर इनकम ड्विंडल, ड्रॉट हो गया, वाटर नहीं या फ्लड है, एक्सेस फ्लड हुआ, वास्ट अवे कर गया उनकी स्टैंडिंग क्रॉप्स। तो दिस इज द नाउ। और मोर ओवर अगर देखा जाए तो इनकम से इनके अफेक्टेड होते थे प्राइस है, कभी मार्केट प्राइस उनको नहीं मिला, तो ये फ्लक्चुएट उनके इनकम को करता था। बस एग्रीकल्चर लेबर्स आर मोर ऑफन नॉट पेड बिलो द स्टेचुटरी मिनिमम वेज एंड अर्न वेरी लिटिल। लेकिन स्टेचुटरी मिनिमम वेजेज जो गवर्नमेंट्स ने जिसको फिक्स किया, उससे ये बिलो पाए जाते थे। क्यों? वाई दे वर गिवन द बिलो? बिकॉज रीजन इज दैट कि आप जानते हैं कि लेबर मार्केट
So laborers were the unemployed and laborers were the in the huge number in the market, huge number. मार्केट लेबर मार्केट्स में दे आर सफिशिएंट। तो वहां पे लैंड ओनर्स क्या करता था, बार्गेनिंग। उस बार्गेनिंग में देयर वेजेस वर बिट डाउन एंड इट वाज द लोअर एंड द बिलो द गवर्नमेंट से फिक्स्ड डेली वेजेस से वो बहुत कम होता। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर्स था कि वेजेस जो थे बहुत कम थे। एक लेबर मार्केट वहाँ पे हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस, वही मार्केट में भी था, लेबर्स में भी। लेबर्स की हायर सप्लाई है उनकी, तो प्राइसेस। दिस इज द फैक्टर दैट वेजेस वेर द वेरी लो देयर एंड मोर ओवर a structure and insecure and laborers got the very little. Their incomes are very low. Their employment is insecure. Employment भी insecure नहीं था। क्या था? एग्रीकल्चरल जब सीजन है तो ग्रेट डिमांड, बहुत डिमांड है। और एग्रीकल्चरल जब सीजन ऑफ हुआ तो उसके बाद दे बिकेम द अनएम्प्लॉयड। उसके बाद वो घूम रहे हैं विदाउट द वर्क, दे हैव नो वर्क एट ऑल। एंड मोर ओवर and most agricultural laborers are daily wages workers होते थे and have worked many days in the of the years. This is the known as unemployment. तो उनके साथ क्या था, unemployment थी, एक छिपी हुई hidden unemployment. Similarly tenants cultivators जो थे, जो लीज पर लेते थे, एक ऐसे भी कल्टिवेटर्स थे जो लैंडलेस थे, जो लीज पर जमींदारों के और लैंड्स लेते थे लीज पर, अंडरस्टैंड। तो दे हैड टू बी द, उसका जो प्रोडक्शन लीज लैंड से जो प्रोडक्शन होता था, तो उन्हें 75 50 से लेकर राइट फ्रॉम 50 टू 75% ऑफ द प्रोड्यूस वाज टेकन अवे बाय द लैंड ओनर्स। ओनली a little was left with them that was not sufficient for their family, understand। so this is the conditions that the in the village area that prevailed during the time। Now we can see the further here aggregating society अब देखा जाए can be understood in terms of class structure देखा। Let's see, we have to remember a structure, caste system। through the caste system अगर देखा जाए, in rural area there is a complex relationship between caste and class। यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है कास्ट में और क्लास में। हाउ this relationship is now always straightforward। we might expect that higher caste have more land and the higher income। क्लियर है, हायर कास्ट के पास बहुत लैंड होता था, इनकम भी। एंड देयर वाज ए correspondence between caste and class as one moves down to the hierarchy। और ये corresponding था, one moves down from the hierarchy, this income and the caste or class, that this was based on the even the class किस पर बेस्ड था, हेरारिकल, हेरारकी पर। टॉप पर है उसे ज्यादा इनकम है, ये ऑलरेडी डिफाइंड था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके पास ऑलरेडी ये डिफाइंड इनका क्लास था, ऑलरेडी दे हैड द मच इनकम। शूद्राज नथिंग। तो ये हमारे यहाँ कास्ट और क्लास की जो डेफिनेशन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, लेकिन हमारे यहाँ सिंस द कास्ट सिस्टम में डोमिनेट और उसमें उसी के अनुसार क्लास बना दिया गया, हायर क्लास एंड लोअर। and this is the many areas, this is broadly true but not exactly। example here, in most area of the highest caste Brahmins are not major landowners। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया जा सकता है इंस्टेंसेस में कि मोस्ट ऑफ द एरिया Brahmins are the higher caste but they are the not landowners and we are not related to the lands agriculture and the rural society में structure में। in most regions India the major land owning groups belong to the upper caste। और लैंड ओइंग ग्रुप तो अपर कास्ट था, लेकिन ब्राह्मण्स जो है बहुत जगह ऐसा मिलता है कि वो मेजर लैंड ओनर्स नहीं, डिस्पाइट हैविंग द देयर पोजीशन एट द टॉप। बट जनरली दिस वाज द अपर कास्ट हैविंग द लैंड। ईच रीजन देखा जाए देयर वेयर यूजुअली जस्ट वन और टू मेजर लैंड ओइंग कास्ट हु आर आल्सो
numerically very important. Such groups were termed by the sociologist M. N. Srinivasan was the dominant caste. अब dominant caste मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, उससे बुक्स में आपने पढ़ा है कि विलेज एरिया में M. N. श्रीनिवासन ने एक डोमिनेंट कास्ट को स्केच किया। डोमिनेंट कास्ट कैसे आया, हाउ दे अपीयर इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अंडरस्टैंड, जो वास्ट लैंड स्टेट था बड़े जमींदारों के, जो एब्सेंटीज जमींदार थे, they did not participated directly in the agricultural activities and lived in the towns. Their residence was in town, but they had the vast state of the state. Understand? तो ये, लेकिन उनको जो लैंड मैनेज करने वाले जो गांव में थे, विलेजेस में, they were not cultivators but the manager were. तो these caste आप इंडिपेंडेंट के बाद, they legally by the law they had the assigned the land by the government, and this caste since became the dominant caste in the society. समाज में ये जैसे यादव कास्ट हुए, कुर्मी कास्ट हुए, कुंडी हुए और जाट हुए, ये एक डोमिनेंट कास्ट के फॉर्म में इमर्ज हुए, क्योंकि इन्हें लैंड गवर्नमेंट्स ने एफर्ट्स किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो वी सी हियर, एंड मोर ओवर द मोस्ट पावरफुल ग्रुप ये था, क्यों, ये स्ट्रेंथ में, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ भारत इंडिपेंडेंस के बाद, और उस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या था, नंबर नंबर गेम था। तो दे हैड द political political hold also, because their representatives won in the election in large number. क्यों, because they had the numbers, large number in their population was very large, that's why they they elected and went, and as a representatives, and began to uh, uh, make they became the decision makers at the top of the politics. And since the economic power, economically they became the powerful because of the land granted, lands assigned by the law by the government. After the independence, Jamindar's land was, big Jamindar's land was taken away, seized, and it was just distributed by the law to these newly dominant caste. इनको दे दिया गया और जमींदारों का लैंड लेकर। तो दिस इज द, नाउ दिस हैपेंस इन द सोसाइटी, और ये क्लास एक डोमिनेंट कास्ट फॉर्म हुआ, इकोनॉमिकली डोमिनेंट लोकल सोसाइटी। और दिस से, जैसे कि जाट है, जैसे मैंने पहले भी, राजपूत इन उत्तर प्रदेश, गोकालीगास इन द एंड लिंगायस कर्नाटका में, और कमास इन एंड रेडीज इन आंध्र प्रदेश, और जाट सिक्स इन द पंजाब। ये डोमिनेंट कास्ट के फॉर्म में इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में, रूरल एरिया में ये emerged हुए। This is the, and more while dominant land-owning groups were using middle and high-ranked caste, most marginal farmers and landless belong to the lower caste group. ये तो मार्जिनल मिडिल क्लास ये फॉर्म किया इन्होंने, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो मार्जिनल ग्रुप था या लैंड लॉस, तो ये क्लास लोअर कास्ट ग्रुप से, और ये नया क्लास क्या हुआ कि ये मिडिल क्लास के फॉर्म में। इन ऑफिशियल क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो इसे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हम कहते हैं, और अदर्स जो हुए, जो डोमिनेंट कास्ट या जो उनसे जो नीचे बिलो थे, उनको ओबीसी क्लास से बैकवर्ड। इन मेनी रीजन इंडिया हम देखते हैं कि फॉर्मर अनटचेबल्स दलित कास्ट वेयर नॉट अलाउड टू ओन द लैंड। दलित कास्ट चूंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसमें उन्हें डिप्राइव किया गया। दे प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर फॉर डोमिनेंट, और इस डोमिनेंट क्लास को जो नया हुआ, इसको एग्रीकल्चरल लेबर कौन प्रोवाइड किया, जो दलित क्लास थे या जो डाउन टू। जमींदार के टाइम्स में भी ये मिडिल केवल मैनेजिंग करते थे स्टेट का, उसके स्टेट से उसके लैंड्स का एग्रीकल्चर, लेकिन एक्चुअल में कल्टीवेटर्स कौन था, वो मार्जिनल लैंड, लैंडलेस, या तो मार्जिनल लैंड है थोड़ी सी, या वो लैंडलेस है, ये ग्रुप जो दैट प्रोवाइडेड देम। एंड मोर ओवर अनटचेबल्स दलित कास्ट वेयर नॉट अलाउड टू ओन द लैंड्स,
राइट्स नहीं था, एंड दे प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरल इन दैट दिस आल्सो क्रिएटेड द लेबर फोर्स अलाउड द, और इसने लेबर फोर्स जो है वो दैट प्रोवाइडेड दे लैंड इंटेंसिवली द गेट हायर रिटर्न्स, और लैंड्स जो भी है एग्रीकल्चर होता था। द रफ कॉरस्पॉन्डिंग हम देखें, caste and class means typically upper and the middle caste also had the best access to the land. Upper और middle class के पास काफी lands होता था, land resources, hence power and privilege भी उनके पास था इलेक्शंस में ये, और इनके पास पैसे, इकोनॉमिकली भी स्ट्रेंथ हुआ और पॉलिटिकली भी स्ट्रेंथ हुए, प्रिविलेज भी था। दिस हैड इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी एंड रीजन्स। appropriate caste group owned most of the sources, कैन कमांड द लेबर वर्क, और लेबर को अगर कमांड करे, इसी वक्त इसके साथ साथ लेबर वर्क कमांड करने वाला एक जो अप्रोप्रिएट ये प्रोप्रिएटर कास्ट जो था, जिसके पास लैंड हुआ, जो मालिक हुआ, तो ये क्लास से क्या था कि इन्होंने बेगार लेना भी शुरू किया। बेगार वी नो वेरी वेल कि मेंबर्स लो रैंक के लोगों को, कास्ट ग्रुप को लेबर प्रोवाइड करते थे, और फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज इन्होंने कर दिया, इतने फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज दे हैव टू प्रोवाइड, एंड लैंडलॉर्ड्स सिमिलरली lack of resources and dependence on the landed class for economic, social and political power support meant the many of the working poor were the tired the land owners inherited, क्योंकि इनके पास nothing they had, so they were tired with the land owners इकोनॉमिकली, सोशली और हर तरह से पॉलिटिकली। दे वेर जस्ट एक बॉन्डेड लेबर की तरह, हेरिडिटरी बॉन्डेड लेबर, एक नहीं हेरिडिटरी कि वो करेगा उसके बाद उसका सन करेगा, एक जनरेशन टू जनरेशन दे हैड विद द टायर्ड विद द जमींदार्स या लैंड ऑनर्स ग्रीव्स में, नॉट स्लेव लेकिन लेस देन नॉट स्लेवरी, कंप्लीट स्लेवरी तो नहीं था लेकिन लेस भी नहीं था, resembling they were the tired with, and relationship बॉन्डेड लेबर की तरह, जिसको हम बॉन्डेड लेबर कर सकते हैं। मोर ओवर द, इसी तरह जैसे मान लीजिए कि हलपति सिस्टम इन गुजरात एक सिस्टम था बॉन्डेड लेबर, इसी तरह से यहाँ पे कर्नाटका में इसको जीता सिस्टम कहते हैं, कर्नाटका के लोग, ये याद रखिएगा ये सब टर्म्स जो हलपति और कर्नाटक, दिस इज द 1 मार्च में, दिस इज द आस्ट, कैन बी आस्ट, एंड जीता सिस्टम इन कर्नाटका, एंड दिस प्रैक्टिस हैव बीन द एबोलिश्ड लीगली, हालांकि बाय लॉ अब इस प्रैक्टिस को एबोलिश्ड कर दिया गया है। और नाउ मेजर इन विलेजेस नॉर्दर्न बिहार, majority of landowners are Bihar and also the dominant caste। आज के लिए इतना ही। Thank you very much for attending the class.